Good evening, class. Hope I am audible to you. Yes. Recording has been started. Please mark your attendance in the chat box. You have to write your name, standard, and location. Waiting for your attendance. Please mark your attendance as soon as possible. Yes, so let us start the topic. This is the combined class of class 5, class 6, and class 7, right? This is combined class of 5, 6, and 7. For the first 20 minutes, I will teach class 5. For the next 20 minutes, I will teach class 6. And for the next 20 minutes, I will teach the class 7. The topic for the class 5 is numbers. That is the first chapter as per your NCERT syllabus. For the class 6, it is the topic number, and we will discuss ascending and descending. ओके, आज हम ascending और descending डिस्कस करेंगे और इसके बाद के हम expansion of term, right? And for the class 7, the topic is integer, right? So somewhat all the topics are related to each other. Okay, so I hope everyone have marked their attendance. 1, 2, 3, 4, 5, 6. And how many students are there? There are 4 students still left to make their attendance. Arnab, please mention your class also, right? So that I can understand in which class you are. 5, 5, 5, 1 student of 6, and 1 of 7. Okay. So let us start the topic without wasting so much time. It is already 6:04 p.m. So in last class, we have discussed that a fisherman went to the sea, okay, with a boat of capacity 150 kg. एक बोट पे वो सी गए जिसकी कैपेसिटी 150 kg की थी, ओके, एंड द वेट ऑफ टू फिशरमैन वाज 110 kg, राइट? सो मैंने आपसे पूछा था कि वो आते वक्त मैक्सिमम कितने फिश पकड़ के ले आ सकते हैं. सो योर आंसर वाज 40 kg because the total capacity of the boat is 150 kg and the total weight of the fisherman is 110 kg. Okay, so when you subtract 150 minus 110, then it will be equal to 40 kg. Okay, इसके अलावा हमने देखा था कि एक ऐसी शेप जिसमें 3 साइड्स होती है, ओके, उसे हम क्या बोलते हैं? ट्राइंगल. 3 साइड्स एंड क्लोज्ड फिगर. ये आप देख रहे हो, दिस इज समथिंग लाइक अ क्लोज्ड फिगर, राइट? ये क्लोज्ड फिगर आप यहाँ पे देख रहे हो, ओके. सो दिस इज अ ट्राइंगल एंड एट द बॉटम दिस इज कॉल्ड एज ट्रेपेजियम. बोट की जो निचले वाली पार्ट है, इसे आप देखोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा. दैट शेप इज कॉल्ड एज ट्रेपेजियम. ओके, so let us
कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। इसके अलावा हमने देखा था एक सार का एग्जाम्पल लिया था, राइट। हाँ, so in this topic you will learn, this is for class, right now I am teaching for the class 6, right. So in this topic you will learn addition, subtraction, multiplication, shape and measurement, right. You will learn these things. So in earlier classes we have little bit discussed about addition and subtraction and little bit about shape. हमने दो shape के बारे में जाना. The first one is triangle and the second one is trapezium, right. So आज हम कुछ और एग्जाम्पल की मदद से हम एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन सीखते हैं, राइट. Okay. So let us suppose you went to the market. आप मार्केट जा रहे हो, राइट. मार्केट जा रहे हो फ्रूट्स परचेज करने के लिए. तो यू हैव टू परचेज मैंगो 3 kg and grapes I think my voice is audible, right, because I am logged in with 2 devices and I can hear my voice. If my voice is not audible to you clearly, then please left the meeting and rejoin, right. एक बार मीटिंग को आप लेफ्ट करिए और फिर से रिजॉइन करिए तो शायद आवाज आपको अच्छे से सुनाई देगी. इफ माय वॉइस इज ब्रेकिंग देन बाकी लोगों को भी ब्रेक करेगी. ओके, यस. एंड यू हैव टू परचेज ग्रेप्स 2 kg, राइट. हाँ, आप मार्केट जा रहे हो और मार्केट में आपको 3 kg मैंगो परचेज करनी है एंड यू हैव टू परचेज 2 kg ऑफ ग्रेप्स एंड द प्राइस ऑफ मैंगो इज ₹80. ओके, 80 रुपीज में आपको 1 kg मैंगो मिलता है और ग्रेप्स थोड़ा महंगा है तो 120 रुपीज, राइट. तो आपको टोटल हाउ मच मनी यू विल required to purchase 3 kg of mango and 2 kg of grapes plus 5 kilo. How much of money will required? ओके, मार्केटिंग करने आप जा रहे हो फ्रूट्स का. ओके, तो आपको कितने पैसे की जरूरत होगी. तो ये हम कैसे करेंगे, लेट अस लर्न. ये मैं आपको बता देता हूँ, कुछ लोग सॉल्व कर भी लिए होंगे, राइट. So you have to purchase 3 kg of mango, but the price of mango is ₹80 per kg, right? And the price of grapes is 120 per kg. There is one answer in the chat box. 4800. Second answer is 200. Okay. Very good. आपका आंसर गलत है या सही है ये मायने नहीं रखता है, आपने ट्राई किया एटलीस्ट. ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें कितने पैसे की जरूरत होगी. ओके, सो इसे हम पहले सिंपल मेथड से समझते हैं. सो यू हैव टू परचेज 3 kg ऑफ मैंगो, राइट. सो 80 रुपीज फॉर फर्स्ट kg, देन अगेन 80 रुपीज फॉर सेकेंड kg, and then again 80 rupees for 1 kg mango, right. So 80 plus 80 plus 80 is, इसे आप ऐड करोगे 80 plus 80 plus 80, 0, 8 plus 8 16, 16 plus 8 is 240, right. So you need 240 rupees for mangoes. And let us see how much money will require for grapes. So grapes कितने करने हैं परचेज आपको 2 kg. ओके, 2 kg क्या होता है 1 plus 1 is 2. 1 kg
plus 1 kg is equal to 2 kg, right? So 1 kg की प्राइस कितनी है? 120. ओके, इसी तरह ये वाली 1 kg की प्राइस कितनी है? 120. So 120 1 kg, again 120, right? So when you add 120 and 120, it will equal to 240. क्लास 7 के जो स्टूडेंट होंगे वो ओरली ही इस क्वेश्चन को कर लेंगे, राइट? 2 plus 2 is 4 and 1 plus 1 is 2. So the price of grapes will be 240 rupees. क्योंकि यहाँ हमें पैसे लग रहे हैं, मीन्स 240 क्या है? रुपीज. तो मैं यहाँ पे ये रुपीज का साइन ऐसा होता है, ये साइन में यहाँ पे डाल दिया, राइट? अगर आप सीधे 240 लिख दोगे तो 240 यहाँ पे क्या है? दिस इज नॉट क्लियर, राइट? अगर आप शॉप जा रहे हो एंड आप बोलोगे कि 2 kg दे दो, ओके, so the shopkeeper will not understand that what you need, okay, so you have to speak that uncle, I need 2 kg of sugar or 2 kg of potato, tomato, whatever else, right? So how much money you require? You require, for mango you require 240 rupees, and for grapes you will require 240 rupees, right? So once you add 240 and 240, it will be equal to what? As I see that there are many answer in the chat box. 240 plus 240, 480, right? चैट बॉक्स में आपने बहुत सारे बच्चों ने आंसर किए हैं 480. Yes, so I'm going to write the price of mango and grapes, that is 480, means 240 plus 240, you will get 0 plus 0 is 0, 4 plus 4 is 8. मैं यह मान के चल रहा हूं कि आपको एडिशन करने आ रही है. अगर किन्हीं को एडिशन करने में क्लास 5 के स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो रही है तो आप चैट बॉक्स में बता सकते हो कि सर आई हैव प्रॉब्लम, मीन्स में एडिशन करने में मुझे तकलीफ हो रही है, तो मैं एडिशन कैसे किया जाएगा वो भी मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा, राइट? अगर किसी को कोई भी क्वेरी होगी देन यू हैव टू टाइप योर नेम इन द चैट बॉक्स. आप अपना नाम चैट बॉक्स में टाइप करोगे एंड आई विल अनम्यूट यू. ओके, मैं आपके माइक को ऑन करूंगा, देन यू कैन आस्क द क्वेश्चन. ओके, चूंकि अभी क्लासेस स्टार्ट हुई है, दैट्स व्हाई we are keeping mic and video off of the students. Okay, so यहाँ पे आपको टोटल कितने पैसे चाहिए? 480. सो क्लास 5 के स्टूडेंट क्या यह समझ पाए क्या? If you able to understand, then please type yes in the chat box so that I can proceed further. अगर क्लास 5 के स्टूडेंट यह समझ पा रहे हैं कि 480 रुपीज कैसे आया, तो आप चैट बॉक्स में यस लिखें. ओके, देर आर 2 yes in the chat box. Very good. यस यस, ओके, मैं समझ गया कि आप समझ पा रहे हो. तो हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं. ओके, सो you spent 480 rupees in the market to buy mango and grapes, but आपके पास, आप मार्केट जाने से पहले घर से you took 800 rupees. ओके,
आपके पेरेंट्स ने आपको 800 रुपीज दिए और दे सॉरी, आपके पेरेंट्स आपको 800 रुपीज दिए और उन्होंने कहा कि जाइए मार्केट से 3 kg मैंगो और 2 kg ग्रेप्स परचेज करके लाइए, राइट? सो यू परचेज these item for 480. So after purchasing, how much money left? आपके पास कितने पैसे अब बचे हैं? How much money left means you have 800 rupees and you spend 480 rupees, right? मीन्स आप ऐसे समझ सकते हो कि 800 रुपये आपके पास थे और आपने मुझे 480 दे दिए, तो क्या होगा यहाँ पे? माइनस होगा, राइट? यहाँ पे क्या होगा? माइनस. So 800 minus 480, as there are some answer in the chat box, it is 320. हम कैसे सब्ट्रैक्शन करते हैं? We will write 800 like this, 480 like this. 0 minus 0 is 0, 10 minus 8 is 2, and यहाँ पे 10 लिया तो यहाँ पे ये 7 हो जाएगा. 7 minus 4 is 3. So the 320 is the right answer, right? Very good, very good. 320 will remain. So I think यहाँ पे सभी लोग ये चीज समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पे 320 कैसे आया. So as it is 617, so sorry, yes, मैं आपको एक सेकेंड क्वेश्चन देता हूं, वो क्वेश्चन आप करोगे एंड देन आई विल प्रोसीड टू द क्लास 6, राइट? द प्राइस ऑफ अ पेन इज, एक पेन आपको बहुत पसंद है जिसकी प्राइस क्या है? ₹60. एंड यू हैव टू परचेज पेंसिल फॉर द एग्जामिनेशन जिसकी प्राइस क्या होती है? ₹5. एंड शार्पनर यू हैव टू परचेज जिसकी भी प्राइस क्या होती है? ₹5, राइट? एंड यू हैव टू परचेज 2 पेन, 1 pencil and 1 sharpener, right? You have to purchase 2 pen, 1 pencil and 1 sharpener. This is price and this is quantity, right? This is quantity, okay? And your parents give you, पेरेंट्स ने आपको सॉरी, पेरेंट्स ने आपको कितने पैसे दिए? 200 रुपीज, राइट? आपका एग्जाम चल रहा है तो पेरेंट्स ने आपको 200 रुपीज दे दिए और बोले कि जाते वक्त आप स्टेशनरी के शॉप में ये सारा सामान आप परचेज कर लो, राइट? सो फर्स्ट क्वेश्चन इज how much money will require there are many answers in the for both for all three, okay, right? Yes, I will repeat you, okay? And second is how much money we left. This is second answer. And question 3, if, चलो क्वेश्चन 3 में नहीं देता हूं, राइट? प्लीज अनम्यूट यू मी
Aswani, let me see. यहाँ पे मेरा क्वेश्चन क्या है कि आपका एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाले हैं और आपको एग्जामिनेशन के लिए क्या चाहिए, नए पेन चाहिए, पेंसिल चाहिए, राइट, और शार्पनर चाहिए. सो द प्राइस ऑफ पेन इज ₹60, द प्राइस ऑफ पेंसिल इज ₹5, and the price of sharpener is ₹5. Okay, and the quantity of pen is 2. You have to purchase 2 pen, 1 pencil and 1 sharpener, and your parents gave you 200 rupees. So how much money you will require for all three? तीनों सामान परचेज करने के लिए आपको कितने पैसे की जरूरत होगी. एंड द सेकेंड थिंग, परचेज करने के बाद आपके पास कितने पैसे बचेंगे. सो ये आपका होमवर्क रहा. ओके, I will ask the answer of this question in the beginning of next class, and then I will discuss this question, right? So, uh, someone told me to unmute him. Uh, Now I am going to start class 6, right? Okay, how many of you from the class 6? आप में से कितने क्लास 6 से हो? Please raise your hand. Okay, there are 2 students from the class 6. Very good. Okay, so class 5 के स्टूडेंट ये नोट कर लिए होंगे आप. I am going to the next slide, right? So in the last class we have discussed, yes, the first chapter of class 6 is knowing our numbers, right? And we have discussed these things कि what is digit, digit किसे कहते हैं, and when we combine digit, right, when we combine digit then we get number. जब हम डिजिट को कंबाइन करते हैं तो हमें क्या मिलती है, नंबर मिलती है. जो लोग हैंड रेज किए हैं आप अपना हैंड लोअर कर लें, राइट. यस, इसके अलावा मैंने आपको एक उदाहरण दिया था कि पहले के टाइम में कैसे लोग याद रखते थे जब कोई भी नंबर्स नहीं थी. आई गिव यू अन एग्जांपल दैट अ फार्मर हैव 5 बफेलो नेम्ड B1, B2, B3, B4 एंड B5. ओके, एक दिन ये पांचों बफेलो एग्रीकल्चर फील्ड में गई घास खाने के लिए, और शाम के आने के बाद क्या हुआ कि फार्मर ने B1 को यहाँ पे टाई किया, B2 को यहाँ पे टाई किया. ओके, एट लास्ट, यस, एट लास्ट ही फाउंड दैट यहाँ पे एक बफेलो उसका क्या है, गायब है, राइट. सो इस तरीके से पुराने समय में लोग नंबर्स को याद रखते थे. इसके अलावा हमने पिछले क्लासेस में देखा था हाउ वी कैन कंपेयर द नंबर, राइट. कि अगर आपको 2 नंबर दे दिया जाए, देन which number is greater and which number is smaller, right? Class 5 student, if you want to remain here then you can stay, right, and if you want to leave then you can leave. Okay, it is up to you. Okay, so in last class हमने देखा कि कैसे हम नंबर को कंपेयर करते हैं, और हमने असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में डिस्कस किया, और आपसे पूछा भी असेंडिंग एंड डिसेंडिंग के बारे में, और आपने जवाब भी दिया कि असेंडिंग और डिसेंडिंग
ऑर्डर किसे कहते हैं, राइट। सो लेट अस लर्न एक्सपेंशन। अभी हम सीखने वाले हैं एक्सपेंशन। अगर आपको एक्सपेंशन आती होगी देन आई विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। लाइक 73, 73, अगर आपके पास 73 रुपीज हैं then you can say that 10 into 7 is 70 plus 3. Let us suppose 896. Okay, मैं अभी लिख रहा हूँ, फिर I will explain. I am going to write little big so that you can see clearly. Let us suppose 73. So 73 यहाँ पे क्या है? 3 is unit digit and 7 is tens. Okay, unit digit, unit के बाद 10, then 100, right? Then 1000, then 10,000, उसके बाद लाख, 10 लाख, लाख, देन करोड़। सिमिलरली इसी तरीके से जाता है। ओके, सो यहाँ पे हम 73 को एक्सपेंड कर रहे हैं, राइट। सो 73 कैन बी रिटन एज 10 into 7 plus 3. ओके, सो प्लीज टेल 126 को हम एक्सपेंड करके क्या लिखेंगे? यहाँ पे 126 में this is unit digit, this is 10 and this is 100. यूनिट डिजिट को एज इट इज रहेगा, राइट। जो 10th डिजिट है वहां पे आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे, जो 100 वाली है उसे आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे। ओके, so can anybody tell how you can write 126? 126 को एक्सपेंड करके आप कैसे लिखोगे? 126 को आप कैसे लिखोगे? ओके, 100 प्लस 80, नो। ओके, सो ये दिस इज यूनिट डिजिट, राइट। दिस इज 2 is 10th digit and 1 is 100. अगर आप अपने पेरेंट्स से 126 रुपीज मांगते हो तो आपके पेरेंट्स क्या देंगे? 100 के नोट देंगे एक, फिर एक 20 रुपीज देंगे, राइट। देन 6 रुपीज। मीन्स इसे हम ब्रेक कर रहे हैं, राइट, वी आर ब्रेकिंग दिस। सो 100 का एक नोट रहेगा, राइट। उसके बाद 10 का 2 नोट रहेगा और 6 क्या रहेंगे? 1 रुपीज के कॉइन रहेंगे, राइट। If you do not able to understand expansion, right, so before this I am going to discuss greatest and smaller number. हम फिर से greatest and smallest number पे आते हैं। That topic we discussed in last class. Then again we will come to the expansion, right? So I am going to stop the presentation for a while and I will again
present my screen. Just wait for a few seconds. My screen will visible to you. Hope my screen is visible to you. Right. Let me clear in chat box that my voice is audible to you clearly. If I am audible to you clearly, then please type yes in the chat box. Okay, okay. Okay. So Harry, you can see, yes, yes. एक दो आदमी कंफर्म कर दिए, then I am audible, right? यहाँ पे आप देख रहे हैं, use the given digit without repetition and make the greatest and smallest 4-digit number. तो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हो, दिस इज योर मीन्स, ये आपका एक्सरसाइज नहीं है, यहाँ पे हम सीख रहे हैं जस्ट। ओके, ये पहले हम सीख लेंगे, देन हम एक्सपेंशन देखेंगे। तो यहाँ पे यू हैव टू मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4-digit without repetition of the digit. फॉर एग्जाम्पल 4750 को अगर हम लेते हैं, राइट, सो 4750 से आपको क्या बनानी है, नंबर्स बनानी है। ओके, सो व्हाट यू विल डू, आप यहाँ पे क्या करोगे, 4750 की मदद से हम कौन कौन से नंबर बना सकते हैं, सॉरी 4750, लेट अस सपोज आई एम गोइंग टू राइट 4750, देयर आर 4 digits, 475, 0। हमने सबसे पहले क्लास में क्या देखा था कि when we combine digit then we get number। ओके, जैसे हम इंग्लिश अल्फाबेट में ABCD से Z तक होती है, जब हम अल्फाबेट को कंबाइन करते हैं तो अलग अलग अल्फाबेट को हम कंबाइन करते हैं कि जैसे APPLE, देन वी गेट एप्पल, राइट, BOOK, देन वी गेट बुक। सिमिलरली हम यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट अल्फाबेट को कंबाइन करेंगे एंड वी विल गेट सम नंबर। तो हमें क्या बतानी है, ग्रेटेस्ट नंबर, राइट। यू हैव टू से, आपको ये चारों नंबर को कंबाइन करके ग्रेटेस्ट नंबर बनानी है, ग्रेटेस्ट नंबर आपको बतानी है। ओके, तो हम कैसे इसे कंबाइन कर सकते हैं, ये 475 एंड 0। तो लेट अस सपोज मैं एज इट इज लिखता हूँ 4750, इट इज 4750, राइट, 4750। और हम क्या लिख सकते हैं, 4750। इसके अलावा हम क्या लिख सकते हैं, 4 को हम 1000 के प्लेस पे रखते हैं, उसके बाद हम 5 को लाते हैं, 4570। और क्या लिख सकते हैं, 4057, या नहीं तो 4075, राइट। ये हमने क्या किया अभी, सबसे पहले 4 को लेफ्ट साइड में लाया, राइट, 4 को हम यहाँ पे लेफ्ट साइड में लाए, तो वी गेट 4 डिफरेंट कॉम्बिनेशन। सिमिलरली इफ यू पुट 7 टू द लेफ्ट एज द 1000, तो 7 को मैं यहाँ पे रखूंगा, 7450 इज द फर्स्ट नंबर। ओके, फिर यहाँ पे 4 एंड 5 को रिप्लेस कर देंगे, तो 7 यहाँ पे 540। अब हम यहाँ पे 4 एंड 0 को रिप्लेस करते हैं, तो 4 की जगह पे 0 आ जाएगी,
5 will remain as it is and 4 will come at last. And if we replace 5 and 0, then 7 4 0 5. तो यहाँ पर भी हम we get 4 different combination using 7 as 1000 digit, right? Similarly, we can make different combination by using 5. Okay, तो 5 लिया तो 4 दे देता हूँ, 5 4 7 0. सेकेंड इज ये 4 7 को मैं रिप्लेस करता हूँ तो 7 आ गया, 4 आ गया, 0. सिमिलरली 5 0 7 4 5 0 4 7. सो यहाँ पे there are 4 digit 4 7 5 and 0, right? There are 4 digit 4 7 5 0, and by using this digit we get total 12 combination, right? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ओके, हम यहाँ पे 0 को भी पहले डाल सकते थे, but let us suppose if you use 0, let us suppose 0 5 7 4. अगर हम ऐसे लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज 3 डिजिट नंबर. कोई भी नंबर के पहले अगर 0 लगती है तो उसकी वैल्यू नहीं होती है. अगर 2 है, 2 के राइट साइड में आप एक 0 दे दो तो ये क्या हो जाएगा, 20, राइट? एंड अगर यहाँ पे 2 लिखा है और 2 के पहले एक 0 दे दो, देन इट विल रिमेन एज इट इज 2, राइट? सो नंबर के पहले अगर 0 रहती है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है. सो 574 विल बिकम एज 3 डिजिट नंबर, राइट? सो यहाँ पे हमें टोटल 12 कॉम्बिनेशन आएगी. 5 से स्टार्ट होगी, 4 से होगी और 7 से. ओके, तो आप मुझे चैट बॉक्स में बताएं कि इस 12 नंबर की जो अलग अलग मैंने कॉम्बिनेशन लिखा है यहाँ पे, विच वन इज द ग्रेटेस्ट नंबर? इसमें से सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है? प्लीज टेल इन द चैट बॉक्स विच वन इज द ग्रेटेस्ट नंबर आउट ऑफ दिस. यहाँ पे आपकी बोर्ड पे, स्क्रीन पे 12 नंबर दिख रहे हैं. देयर आर 12 नंबर्स. टेल इन द चैट बॉक्स दैट which number is the greatest number, because we have discussed about ascending and descending order in last class. So आपको मालूम है कि कौन सी नंबर लार्जेस्ट है, फिर उससे छोटी कौन सी नंबर है, राइट? सो प्लीज टेल इन द chat box that which one is the greatest number. ये 4, another 4 and another 4. There are 12 number. I am waiting for your response. I'm someone has raised his hand. Okay, let me unmute. Yes, you can turn on your mic. If you want to speak, then please unmute yourself and speak. In 5750, the biggest number is 7540 and the smallest number is 5047 is the smallest, and 5047 is the smallest, and 5740 is the biggest. Please repeat. 5740 is the biggest.
5740, right? This one. Yes. ये आपका कहना है ये बिगेस्ट होगा, एंड स्मॉलेस्ट कौन सी होगी? 5047. ओके, ये आपने बताया कि आउट ऑफ दिस विच वन इज स्मॉलर एंड विच वन इज द बिगेस्ट। आपको बतानी है ये टोटल, ये देर आर 12 नंबर written over here, right? Out of 12, which one is the largest? Can you tell? There are 12 number written on the board. Okay. 7540. Yes, very good. 7540 is the largest. And which one is the smallest? 4057. 4057. Very good. Someone else wants to try? कोई और बताना चाहते हैं? 4057 is the smallest, right? And 7540 is the largest. Okay. तो यहाँ पे हमने इस नंबर की मदद से 4750 की मदद से हमने नंबर बनाया। ओके, देयर आर 12 डिफरेंट combinations are possible, right? But only one number is smallest and one number that is the largest, which is 7540, and the smaller one is 4057. So मैं एक बता दिया, and you have to do this question number 1. Please write in your notebook so that I can proceed to the class 7 mathematics. Okay, the first is 2, 8, 7, 4. Means यहाँ पे A, B, C, D, E. There are 5 different combinations are given, and you have to identify the combination of the largest number and the combination of the smallest number. Okay. Question number C मैं आपको बता दिया. Okay. So I'm waiting for 1 minute. Please write this 5 number, and अगले क्लास में जब आप आओगे तो ये कॉम्बिनेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे. ओके, देन वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट टॉपिक. लाइक हमने 4750 से जैसे अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाया, एंड आई आइडेंटिफाइड the largest one and the smallest one. Similarly, you have to do for the question A, B, D and E, right? आपको उतने सारे नंबर्स नहीं लिखने हैं. जैसे हम मैं एक उदाहरण देता हूं, जैसे 9741 है. ओके, फॉर एग्जांपल 9741, I have to identify largest number. Okay, तो इसमें क्या करोगे आप? 9741 में सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सी है? 9. ओके, सो 9 को सबसे पहले लिखोगे, तो 9 तो मेरा खत्म हो गया. देन 741, आउट ऑफ 741 द लार्जर वन इज 7, सो 7 यहाँ पे आ जाएगी. 41 में 4 लार्जर है, तो यहाँ पे आ जाएगी, एंड 1 बच गया तो आखिरी में. सो 9741 इज द लार्जेस्ट नंबर, एंड द स्मॉलेस्ट नंबर इज, इसे आप ऑपोजिट कर दो, 1479. दिस इज द स्मॉलेस्ट नंबर. So those student who are from class 7, please raise your hand. Class 7 के स्टूडेंट आप हैंड रेज करिए, so that I can understand. Okay, there is only one student of class 7. Okay, so I think this is your first class, right? Yes. Okay. So whatever we have discussed in last class, let me brief you.
Yes, the topic is for class 7 is integer. Okay. The topic is integer. Okay. I'm going to erase. Your topic is integer. Can anybody tell the what is integer? क्या कोई बता सकते हैं कि इंटीजर हम किसे कहते हैं? आपके दिमाग में जो भी है आप बोल सकते हो. ओके. सॉरी. सो द टॉपिक इज इंटीजर. इंटीजर हम किसे कहते हैं? राइट. सो जो भी नंबर होती है, आप ये नंबर लाइन कभी पढ़े होंगे. These things I have discussed in last class. 0, 1, 2, 3. राइट साइड में आप जाते जाओगे, दिस इज प्लस इंफिनिटी. फिर लेफ्ट साइड में आप जाओगे तो ये -2, -3, लाइक दैट. ओके. यस. सो जो भी हमारी नंबर्स होती है, सॉरी, हाँ, नंबर्स में आप क्या देखे होगे, जैसे आप काउंटिंग बचपन में सीखे होगे 1, 2, 3, 4. फिर सबसे पहले आप 100 तक काउंटिंग सीखे होगे. ओके. फिर बड़े थोड़े होने के बाद आप जीरो के बारे में जाने होगे. ओके. देन आप -5, -10, इन सब सारी चीज़ों के बारे में पढ़े होंगे. ओके. तो इंटीजर हम उसे कहते हैं, इंटीजर में आती है पॉजिटिव नंबर. जो भी नेगेटिव नंबर्स होती है, नेगेटिव नंबर्स मींस इंटीजर में कोई भी फ्रैक्शन, डेसिमल, ये सारी चीज़ें नहीं आती है. ऐसा नहीं कि 0.35 इज इंटीजर. ओके. ये होगी नेगेटिव नंबर. उसके बाद जीरो. देन पॉजिटिव नंबर. पॉजिटिव नंबर. पॉजिटिव नंबर कहाँ से होती है स्टार्ट? 1, 2, 3 से इनफाइनाइट तक. ओके. एंड दिस पॉजिटिव नंबर इज ऑल्सो कॉल्ड एज नेचुरल नंबर. इसे हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर. काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड एज नेचुरल नंबर. आप बचपन में जब काउंटिंग सीखे होगे तो आप 1 से सीखे होगे. so that's why it is called as means counting number, and counting number with 1 is called as natural number. Okay. So this is division of integer. Okay. अब यही आप पॉजिटिव इंटीजर को क्या करोगे? पॉजिटिव इंटीजर को हम डिवाइड करते हैं इवन नंबर एंड ओड नंबर. इवन नंबर एंड odd number. Okay. Even number and odd number. So can anybody tell that what is even number? Even number क्या होती है, क्या कोई बता सकते हैं? If you want to tell, then please unmute yourself and tell.
ओके, आई थिंक नो वन वांट्स टू टेल। मैं आपको बताता हूँ। ओके, इवन नंबर के बारे में बताता हूँ। वैसी नंबर, दोज नंबर, ओके, 2 4 6 8, वेरी गुड। इवन नंबर, दोज natural number which are divisible by 2, which are completely divisible by 2, right? Which are completely divisible by 2. एग्जाम्पल जैसा चैट बॉक्स में इन्होंने दिया, 2 4 6 8। since this is first class, so I am discussing very basic thing. In subsequent class I will go into the deep topic. So मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इज 72 इज इवन? 72 इवन है क्या? इफ इट इज इवन देन टाइप यस, इफ इट इज नॉट इवन देन टाइप नो। 72 is even. इवन हम उसे कहते हैं दोज नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2, मीन्स वैसी नंबर जो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाती है उसे हम बोलते हैं इवन नंबर। ओके, ये 72 इवन है, ये मैं आपको फिर से अगले क्लास में पूछूंगा, राइट। एंड ऑड नंबर हम उसे कहते हैं विच, सॉरी, ऑड नंबर, डेफिनेशन में लिख रहा हूं, नेचुरल नंबर which are not which are not completely divisible by 2। मीन्स अगर आप 2 से उसे डिवाइड करो तो आपको कुछ रिमाइंडर आएगी। फॉर एग्जाम्पल 11 को हम 2 से डिवाइड करते हैं, राइट। तो 2 5 जा 10 और यहाँ पे रिमाइंडर 1 आ रही है, सो 11 क्या होगी? ऑड होगी। ओके, तो आप याद रखने के लिए ये याद रख सकते हो, वैसी नंबर जिसके एंड में 1 3 5 7 9 हो उसे हम क्या बोलेंगे? ऑड नंबर। वैसी नंबर जिसकी यूनिट डिजिट पे 1 3 5 7 9 हो उसे हम क्या बोलेंगे? ऑड नंबर, राइट। एंड द नंबर जिसके अंत में 2 4 6 8 0 यूनिट डिजिट पे हो उसे हम क्या बोलेंगे? इवन नंबर, राइट। So it is 6:54 p.m. and that's all for today class. I will discuss the next topic in the next class. Okay, for the class 7 I will proceed from this topic. For the class 6 I will discuss about the greatest number and the smallest number जो मैं आपको होमवर्क के तौर पे दिया। ओके, मैं एनसीईआरटी की बुक को रेफरेंस लेके आपको पढ़ा रहा हूँ। ओके, आप you can download the NCERT book from the official NCERT website. All the PDFs are available at that website. And the for class 5 we will discuss some another example related to the topic, in which we will learn about addition, subtraction, multiplication. We will learn about measurement, shape and size. Okay, so I'm going to stop the presentation. If anyone have any question, then you can ask. Please raise your hand.
if you have any question. If you have not any question, then you can leave the class.